एक ओंकार सतनाम सतनाम करता पुरख करता पुरख निर्भव निर्भव निर्वैर निर्वैर अकाल मूरत अकाल मूरत अजूनी सैभं अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप गुर प्रसाद जप आद सच आद सच जुगाद सच जुगाद सच है भी सच है भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਲਾਇ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ ਭੁਖਿਆ ਭੁਖ ਨ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆ ਭਾਰ ਸਹਸ ਸਿਆਣਪਾ ਲਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨ ਚੱਲੈ ਨਾਲ ਕੇਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕੇਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀਅ ਹੁਕਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ ਹੁਕਮੀ ਉਤਮ ਨੀਚ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪਾਈਆ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸਿੱਖ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਆ ਹੈ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁੱਝੈ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋਏ ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੈ ਕਿਸੈ ਤਾਣ ਗਾਵੈ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਨੀਸਾਨ ਗਾਵੈ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆ ਚਾਰ ਗਾਵੈ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰ ਗਾਵੈ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨ ਖੇਹ ਗਾਵੈ ਕੋ ਜੀਅ ਲੈ ਫਿਰਦੇ ਗਾਵੈ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ ਗਾਵੈ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰ ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨ ਆਵੈ ਟੋਟ ਕਾਥੇ ਕਾਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ ਦੇਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਹੇ ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਈ ਖਾਹੇ ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹ ਨਾਨਕ ਵਿਖਸੈ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਏ ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰ ਆਖੈ ਮੰਗੈ ਦੇਹ ਦੇ ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰ ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਐ ਜਿਤ ਦੁਸੈ ਦਰਬਾਰ ਮੁਹਾਉ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਐ ਜਿਤ ਸੁਣ ਤਰੇ ਪਿਆਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਮੀ ਆਵੈ ਕੱਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦਵਾਰ ਨਾਨਕ ਏਵੈ ਜਾਣੀਐ ਸਭ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰ ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਗਾਵੀਆ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰੱਖੀਐ ਭਾਉ ਦੁਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਕਰ ਲੈ ਜਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ਗੁਰ ਈਸਰ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬਰਮਾ ਗੁਰ ਪਾਰਵਤੀ ਮਾਈ ਜੇ ਹਉ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਾਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਥਨੋ ਨ ਜਾਈ ਗੁਰਾ ਇਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਇਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਈ ਤੀਰਥ ਨਾਵਾ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾ ਵਿਣ ਭਾਣੇ ਕੇ ਨਹਾਏ ਕਰੀ ਜੇਤੀ ਸੇਠੋ ਪਾਈ ਵੇਖਾ ਵਿਣ ਕਰਮਾ ਕੇ ਮਿਲੈ ਲਈ ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਈ ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ ਨਵਾਂ ਖੰਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਚਲੈ ਸਭ ਕੋਏ ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਰਖਾਏ ਕੈ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੈ ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨ ਆਵਈ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨ ਪੁੱਛੈ ਕੇ ਕੀਟਾ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ ਦੋਸੀ ਦੋਸ ਧਰੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣੇ ਗੁਣ ਕਰੇ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਗੁਣ ਦੇ ਤੇਹਾ ਕੋਈ ਨ ਸੁਝਈ ਜੇ ਤਿਸ ਗੁਣ ਕੋਏ ਕਰੇ ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ ਸੁਣਿਆ ਧਰਤ ਤਵਲ ਆਕਾਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਦੀਪ ਲੋ ਪਾਤਾਲ ਸੁਣਿਆ ਪੋਹਿ ਨ ਸਕੈ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਹੋ ਸੁਣਿਆ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ਸੁਣਿਆ ਈਸ਼ਵਰ ਬਰਮਾ ਇੰਦੋ ਸੁਣਿਆ ਮੁਖ ਸਾਲਾਹਣ ਮੰਦੋ ਸੁਣਿਆ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਤਨ ਭੇਦ ਸੁਣਿਆ ਸਾਸਤ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਹੋ ਸੁਣਿਆ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ਸੁਣਿਆ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ ਸੁਣਿਆ 68 ਕਾ ਇਸਨਾਨ ਸੁਣਿਆ ਪੜ ਪੜ ਭਾਵੈ ਮਾਨ ਸੁਣਿਆ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ਸੁਣਿਆ ਸਰਾ ਗੁਣਾ ਕੇ ਗਾਹ ਸੁਣਿਆ ਸੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਣਿਆ ਅੰਧੇ ਪਾਵੈ ਰਾਹ ਸੁਣਿਆ ਹਾਥ ਹੋਵੈ ਅਸਗਾਹ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ
ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਪਿਛੈ ਪਛਤਾਏ। ਕਾਗਦ ਕਲਮ ਨ ਲਿਖਣ ਹਾਰ, ਮੰਨੇ ਕਾ ਬਹਿ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਸੁਰਤ ਹੋਵੈ ਮਨ ਬੁੱਧੇ, ਮੰਨੈ ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੀ ਸੁਧੇ। ਮੰਨੈ ਮੋਹ ਚੋਟਾ ਨਾ ਖਾਏ, ਮੰਨੈ ਜਮ ਕੈ ਸਾਥ ਨ ਜਾਏ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨ ਪਾਏ, ਮੰਨੈ ਪਥ ਸਿਉ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ। ਮੰਨੈ ਮਗ ਨ ਚੱਲੈ ਪੰਥ, ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸੇ ਤੀਸਨ ਬੰਧ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਪਾਵੈ ਮੋਖ ਦੁਆਰੋ, ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰੋ। ਮੰਨੈ ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ, ਮੰਨੈ ਨਾਨਕ ਭਵੈ ਨ ਭਿਖ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਪੰਜ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਚੇ ਭਾਵੈ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ। ਪੰਚੇ ਸੋਹੈ ਦਰ ਰਾਜਾਨ, ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ। ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ, ਕਰਤੇ ਕਹਿ ਕਰਨੈ ਨਾਹੀ ਸੁਮਾਰ। ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਸੰਤੋਖ ਤਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ। ਜੇ ਕੋ ਬੁੱਝੈ ਹੋਵੈ ਸਚਿਆਰ, ਧਵਲੇ ਉੱਪਰ ਕੇਤਾ ਭਾਰ। ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਫਿਰੈ ਹੋਰ ਹੋਰ, ਤਿਸ ਤੇ ਭਾਰਤ ਲੈ ਕਵਣ ਜੋਰ। ਜੀ ਜਾਤ ਰੰਗਾ ਕੇ ਨਾਵ, ਸਭਨਾ ਲਿਖਿਆ ਬੁਰੀ ਕਲਾਮ। ਇਹੋ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣੈ ਕੋਏ, ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਕੇਤਾ ਹੋਏ। ਕੇਤਾ ਤਾਣ ਸਵਾਲਿਆ ਰੂਪ, ਕੀਤੀ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਕੌਣ ਕੂਤ। ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ, ਤਿਸ ਤੇ ਹੋਏ ਲਖ ਦਰਿਆਓ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਉ, ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ ਅਸੰਖ ਤਪ ਤਾਉ। ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਖ ਵੇਦ ਪਾਠ, ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮਨ ਰਹਿ ਉਦਾਸ। ਅਸੰਖ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਅਸੰਖ ਸਤੀ ਅਸੰਖ ਦਾਤਾਰ। ਅਸੰਖ ਸੂਰ ਮੋਹ ਪਗਸਾਰ, ਅਸੰਖ ਮੌਨ ਲਿਵ ਲਾਇ ਤਾਰ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ, ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ। ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਹੇ ਜੋਰ, ਅਸੰਖ ਗਲ ਵੱਢ ਹੱਤਿਆ ਕਮਾਹੇ। ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਫਿਰਾਹੇ। ਅਸੰਖ ਮਲੇਛ ਮਲ ਭਖ ਖਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਕਰੈ ਭਾਰ। ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵੈ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਨਾਵ ਅਸੰਖ ਤਾਵ, ਅਗੰਮ ਅਗੰਮ ਅਸੰਖ ਲੋ। ਅਸੰਖ ਕਹਿ ਸਿਰ ਭਾਰ ਹੋਏ, ਅਖਰੀ ਨਾਮ ਅਖਰੀ ਸਾਲਾਹ। ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾਹ, ਅਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਣ। ਅਖਰਾ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਬਖਾਣ, ਜਿਨੇ ਲਿਖੇ ਤਿਸ ਸਿਰ ਨਾਹੇ। ਜੇ ਫਰਮਾਏ ਤਿਵ ਤੇ ਪਾਹੇ, ਜੇ ਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਾ ਨਾਉ। ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਉ, ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ। ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਭਰੀਐ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇਹ, ਪਾਣੀ ਧੋਤੈ ਉਤਰੋ ਸੋਖੇ। ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ, ਦੇ ਸਾਬੂਣ ਲਈਐ ਓਹ ਧੋਏ। ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕਾ ਸੰਗ, ਓਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗ। ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾਹਿ, ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਹੋ। ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੋ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਭਉ ਜਾਹੋ। ਤੀਰਥ ਤਾਪੋ ਦਇਆ ਦਤ ਦਾਨੋ, ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੈ ਤਿਲ ਕਾ ਮਾਨੋ। ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ, ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਹਾਉ। ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਬਿਨ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਵਸਤ ਆਥ ਬਾਣੀ ਬਰਮਾਓ, ਸਤ ਸੁਹਾਣ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਓ। ਕਵਣ ਸੋ ਵੇਲਾ ਵਕਤ ਕਵਣ, ਕਵਣ ਥਿਤੇ ਕਵਣ ਵਾਰੋ। ਕਵਣ ਸੇ ਰੁੱਤੀ ਮਾਹੋ, ਕਵਣ ਜਿਤ ਹੋਆ ਆਕਾਰੋ। ਵੇਲ ਨਾ ਪਾਈਆ ਪੰਡਤੀ, ਜੇ ਹੋਵੈ ਲੇਖ ਪੁਰਾਣ। ਵਕਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆਂ, ਜੇ ਲਿਖਨ ਲੇਖ ਕੁਰਾਨ। ਥਿਤ ਵਾਰ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੈ, ਰੁੱਤ ਮਾਹੁ ਨਾ ਕੋਈ। ਜਾ ਕਰਤਾ ਸੇਠੀ ਕਉ ਸਾਜੇ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ। ਕਿਵ ਕਰ ਆਖਾਂ ਕਿਵ ਸਾਲਾਹੀ, ਕਿਉ ਵਰਨੀ ਕਿਵ ਜਾਣਾ। ਨਾਨਕ ਆਖਣ ਸਭ ਕੋ ਆਖੈ, ਇਕ ਦੂ ਇਕ ਸਿਆਣਾ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਨਾਈ, ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਾ ਹੋਵੈ। ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪਉ ਜਾਣੈ, ਅੱਗਾ ਗਿਆ ਨ ਸੋਹੈ। ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲਖ, ਆਗਾਸ ਆਗਾਸ। ਓੜ ਕੋੜ ਭਾਲ ਥੱਕੇ, ਵੇਦ ਕਹਿਨ ਇਕ ਬਾਤ। ਸਹਸ 18 ਕਹਿਨ ਕਤੇਬਾ, ਅਸਲੂ ਇਕ ਧਾਤ। ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ, ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼। ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀਐ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪ। ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹੇ, ਇਤੀ ਸੁਰਤ ਨ ਪਾਈਆ। ਨਦੀਆਂ ਅਤੈ ਬਾਹ, ਪਵੈ ਸਮੁੰਦ ਨ ਜਾਣੀਆ ਹੈ। ਸਮੁੰਦ ਸਾਹ ਸੁਲਤਾਨ, ਗਿਰਹਾ ਸੇਤੀ ਮਾਲ ਧਨ। ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨ ਹੋਵਨੀ, ਜੇ ਤਿਸ ਮਨੋ ਨ ਵਿਸਰੈ। ਅੰਤ ਨ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿਣ ਨ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨ ਕਰਨੈ ਦੇਣ ਨ ਅੰਤ। ਅੰਤ ਨ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਕਿਆ ਮਨ ਮੰਤ। ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ, ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕੀਤੇ ਬਿਲ ਲਾਹੇ, ਤਾਕੇ ਅੰਤ ਨ ਪਾਏ ਜਾਹੇ। ਇਹੋ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਏ, ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਐ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਉ, ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਉ। ਏ ਵਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੈ ਕੋਏ, ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕਉ ਜਾਣੈ ਸੋਏ। ਜੇ ਵਡ ਆਪ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਆਪੇ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤੇ। ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤੇਲ ਨਾ ਤਮਾਏ। ਕੀਤੇ ਮੰਗੈ ਜੋਧ ਅਪਾਰ,
ਕੇਤੇ ਅਗਣਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੋ, ਕੇਤੇ ਖਪ ਟੁੱਟੈ ਬੇਕਾਰ, ਕੇਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਰ ਪਾਹੇ, ਕੇਤੇ ਮੂਰਖ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ, ਕੇਤੇ ਦੁਖ ਭੂਖ ਸਦ ਮਾਰ, ਇਹ ਭੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ। ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੈ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਆਖ ਨ ਸਕੈ ਕੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਖਾਏ ਕੋ ਆਖਣ ਪਾਏ, ਉਹ ਜਾਣੈ ਜੇਤੀਆਂ ਮੋਹਿ ਖਾਏ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਦੇ, ਆਖੈ ਸੇ ਪੇ ਕੇਈ ਕੇ, ਜਿਸ ਨੋ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾਹ, ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰ, ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰੀਏ ਅਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ, ਅਮੁੱਲ ਆਭੈ ਮੁੱਲ ਲੈ ਜਾਏ, ਅਮੁੱਲ ਪਾਏ ਮੁੱਲਾ ਸਮਾਹਿ, ਅਮੁੱਲ ਧਰਮ ਮੁੱਲ ਦੀਵਾਨ, ਅਮੁੱਲ ਤੁਲ ਅਮੁੱਲ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਅਮੁੱਲ ਬਖਸ਼ੀਸ ਮੁੱਲ ਨੀਸਾਨ, ਅਮੁੱਲ ਕਰਮ ਅਮੁੱਲ ਫੁਰਮਾਨ, ਅਮੁੱਲੋ ਅਮੁੱਲ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਆਖ ਆਖ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਆਖੈ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ, ਆਖੈ ਪੜ੍ਹੇ ਕਰਹਿ ਬਖਿਆਣ, ਆਖੈ ਬਰਮੇ ਆਖੈ ਇੰਦ, ਆਖੈ ਗੋਪੀ ਤੈ ਗੋਵਿੰਦ, ਆਖੈ ਈਸਰ ਆਖੈ ਸਿੱਧ, ਆਖੈ ਕੇਤੇ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧ, ਆਖੈ ਦਾਨਵ ਆਖੈ ਦੇਵ, ਆਖੈ ਸੁਰ ਨਰ ਮੂਨ ਜਨ ਸੇਵ, ਕੇਤੇ ਆਖੈ ਆਖਣ ਪਾਹੇ, ਕੇਤੇ ਕਹਿ ਕਹਿ ਉਠ ਉਠ ਜਾਹੇ, ਏਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਕਰੇਹ, ਤਾਖ ਨ ਸਕੈ ਕੇਈ ਕੇ, ਜੇਵੜ ਭਾਵੈ ਤੇਵੜ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸਾਚਾ ਸੋਏ। ਜੇ ਕੋ ਆਖੈ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ, ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰ ਗਾਵਾਰਾ ਗਾਵਾਰ, ਸੋ ਦਾਰੂ ਕੇਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕੇਹਾ, ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ, ਵਾਜੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਸੰਖਾ, ਕੇਤੇ ਬਾਵਣ ਹਾਰੇ, ਕੇਤੇ ਰਾਗ ਪਰਿਸਿਓ ਕਈਨ, ਕੇਤੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ, ਗਾਵੈ ਤੋਨੋ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ, ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ, ਗਾਵੈ ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣੈ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ, ਗਾਵੈ ਈਸਰ ਬਰਮਾ ਦੇਵੀ, ਸੋਨ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ, ਗਾਵੈ ਇੰਦੇ ਦਾਸਨ ਬੈਠੇ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰ ਨਾਲੇ, ਗਾਵੈ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ, ਗਾਵਨ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ, ਗਾਵਨ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਗਾਵੈ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ, ਗਾਵਨ ਪੰਡਿਤ ਪੜਨ ਰਖੀਸਰ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲੇ, ਗਾਵੈ ਮੋਹਣੀਆਂ ਮਨ ਮੋਹਨੇ, ਸੁਰਗਾ ਮਚ ਪਿਆਲੇ, ਗਾਵਨ ਰਤਨੋ ਪਾਏ ਤੇਰੇ, 68 ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ, ਗਾਵੈ ਜੋਧ ਮਾਂ ਬਲਸੂਰਾ, ਗਾਵੈ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ, ਗਾਵੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡਾ, ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਧਾਰੇ, ਸੇਈ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵੈ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨ, ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ, ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਗਾਵਨ ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤ ਨ ਆਵਨ, ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਚ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ, ਹੈ ਪੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨ ਜਾਸੀ, ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ, ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ, ਮਾਇਆ ਜਿਨੋ ਪਾਈ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਜਿਵ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ, ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਸਾਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹਿਬ, ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰੁਜਾਈ, ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸਰਮ ਪਦ ਝੋਲੀ, ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰੈ ਵਿਭੂਤ, ਚਿੰਤਾ ਕਾਲ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ, ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ, ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ, ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ, ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ, ਘਟ ਘਟ ਵਾਜੈ ਨਾਦ, ਆਪ ਨਾਥ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾ ਕੀ, ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ, ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਇ ਕਾਰ ਚਲਾਵੈ, ਲੇਖੇ ਆਵੈ ਭਾਗ, ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ, ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ, ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਣ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀ ਬਾਣ, ਜਿਵ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵੈ, ਜਿਵ ਹੋਵੈ ਫੁਰਮਾਨ, ਉਹ ਵੇਖੈ ਉਹਨਾਂ ਨਦਰ ਨ ਆਵੈ, ਬਹੁਤਾ ਇਹੋ ਵਿਡਾਣ, ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ, ਆਸਣ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ, ਜੋ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ, ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਬਹੁ ਲਖ ਹੋਏ, ਲਖ ਹੋਵੈ ਲਖ ਵੀਸ, ਲਖ ਲਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਐ, ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼, ਇਹ ਤੁਰਾਹੇ ਪਤ ਪਵੜੀਆ, ਚੜੀਆ ਹੋਏ ਕੀਸ, ਸੁਣ ਗੱਲਾਂ ਆਕਾਸ ਕੀ, ਕੀਟਾ ਆਈ ਰੀਸ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ, ਕੂੜੀ ਕੂੜੈ ਠੀਸ, ਆਖਣ ਜੋਰ ਚੁੱਪੈ ਨਹਿ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੇਣ ਨਾ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਨਹਿ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਰਾਜ ਮਾਲ ਮਨ ਸੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਜੁਗਤੀ ਛੁਟੈ ਸੰਸਾਰ, ਜਿਸ ਹੱਥ ਜੋਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਨਾ ਕੋਏ, ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ, ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀਏ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ, ਤਿਨਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ, ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ, ਤਿਥੈ ਸੋਹਣ ਪੰਜ ਪਰਵਾਨ, ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਪਵੈ ਨੀਸਾਨ, ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉਥੈ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਗਿਆ ਜਾਪੈ ਜਾਏ, ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਇਹੋ ਧਰਮ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆਖੋ ਕਰਮ, ਕੇਤੇ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਵੈ ਸੰਤਰ, ਕੇਤੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ਼, ਕੇਤੇ ਬਰਮੇ ਘਾਟ ਕੜੀਐ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇ ਵੇਸ,
केतिया कर्म भूमि मेर केते केते धूप देश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेश केते देव दानव मुन केते केते रत्न समुंद केतिया खाणी केतिया बाणी केते पात नरिंद केतिया सुरती सेवक केते नानक अंत न अंत ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिथै नाद विनोद कोड़ आनंद सरमखंड की बाणी रूप तिथै घाड़त घड़िया बहुत अनूप ताकियां गल्लां कथियां न जाहे जे को कहे पिछै पछताए तिथै घड़िया सुरत मत मन बुद्ध तिथै घड़िया सुरा सिधा की सुध कर्मखंड की बाणी जोर तिथै होर न कोई होर तिथै जोध महाबल सूर तिन में राम रहया भरपूर तिथै सीतो सीता में ममाहे ताके रूप न कथने जाहे ना ओहे मरह न ठागे जाहे जिनकै राम बसै मन माहे तिथै भगत वसै के लो करੈ आनंद सच्चा मन सोए सच खंड वसै निरंकार कर कर वेखै नदर निहाल तिथै खंड मंडल वर भंड जे को कथै ता अंत न अंत तिथै लो अलो आकार जिव जिव हुक्म तिवै तिवकार ਵੇਖੈ ਵਿਗਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ ਅਹਰਣ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ ਭਾਉ ਖੱਲਾ ਅਗਨ ਤਪਤਾਉ ਭਾਂਡਾ ਭਾਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤੋ ਤਿਤ ਢਾਲੇ ਘੜੀਆ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨਕਾਰ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆ ਬੁਰਿਆਈਆ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ 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 ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਪਤ ਸੁਖ ਪਾਵਾਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਪਤ ਸੁਖ ਪਾਵਾਂ ਜਪਤ ਸੁਖ ਪਾਵਾਂ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ 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 ਤੂੰ ਵੱਡ ਦਾਤਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਤੂੰ ਵੱਡ ਦਾਤਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਸਭ ਮਹਿ ਰਵਿਆ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ 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 ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ
प्रभ प्रीतम नाम आधारा। मेरे प्रभ प्रीतम नाम आधारा। हौ सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा। 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 कर कृपा तेरे गुण गावा। 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 तेरी शरण सतगुर मेरे पूरे। तेरी शरण सतगुर मेरे पूरे। मन निर्मल होए संता तूरे। 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 कर कृपा तेरे गुण गावा। 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 चरण कमल हृदय उर तारे। चरण कमल हृदय उर तारे। तेरे दर्शन को जाई बलहारे। 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 कर कृपा तेरे गुण गावा। 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 नानक नाम जपत सुख पावा। नानक नाम जपत सुख पावा। जपत सुख पावा। कर कृपा तेरे गुण गावा।
कर कृपा तेरे गुण गावां, 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 कर कृपा तेरे गुण गावां। वाहिगुरु। गुण गावत मन हरिया होवे, 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 कथा सुनत बाल सगले खोवे, गुण गावत मन हरिया होवे, गुण गावत मन हरिया होवे, गुण गावत मन हरिया होवे। प्रभु अपना सांस सांस समारो, प्रभु अपना सांस सांस समारो, प्रभु अपना समारो, प्रभु अपना सास सास समारो, यह मत गुर प्रसाद मन थारो, प्रभु अपना सांस सांस समारो, प्रभु अपना सांस सांस समारो, हे मत गुर प्रसाद मन तारो, हे मत गुर प्रसाद मन तारो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
देखिए क्या कह रहे पातशाह गुरु अर्जन देव जी महाराज। रब अपना सास सास समारो कि हे वाहिगुरु मैं तुझे याद करूं, पर कैसे? सांस सांस, हर श्वास में तुझे याद करूं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। ए मत गुरु प्रसाद मन तारो, ये मत मुझे गुरु की कृपा से मिली है, गुरु प्रसाद से ये ज्ञान हुआ है मुझे कि मैं उसका नाम बार बार हर श्वास श्वास के साथ सिमरूं। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। महत्वपूर्ण पहलू पहले एक डिस्कस हुआ जप का। अमृत वेला, अमृत वेले जपा हुआ नाम बहुत जल्दी गुरु नानक से मिला देता है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु प्रसाद जल्दी वर्त जाएगा। दूसरा सत्संगत, और अगर कहीं ये दोनों मिल जाए, सत्संगत भी हो और अमृत वेला भी हो, तो सोने पे सुहागा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा खेम सिंह जी अक्सर ये वचन किया करते थे, जो लोग अमृत वेले उठकर श्री सुखमनी साहब जी का पाठ करते थे ना आकर संगत, कहते थे इसका फल इतना है। संगत में बैठकर, एक तो अमृत वेला, ऊपर से संगत, सारी संगत मिलकर श्री सुखमनी साहब जी का पाठ कर रही है। कहते थे एक दिन का फल इतना ना, अगर मैं बता दूं तो अहंकार से भर जाओगे, मैं बताऊंगा ही नहीं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। अंदाजा लगाइए सत्संगत का लाभ क्या है, बड़ी ध्यान से समझो। अकेले बैठकर भी जपा जा सकता है नाम, उसका एक अपनी महिमा है। अकेले जपना बहुत जरूरी है, पर सत्संगत क्या करती है? इसलिए तो दास बार बार बेनती करता है कि शाम को भी सुखमनी साहब जी के पाठ होते हैं 3:15 बजे, और अमृत वेले भी होते हैं 2:30 बजे। बार बार दास बेनती करता है सबको कि ये पाठ में हाजिरी भर लिया करो। क्यों? अगर वो अंदाजा नहीं होता कितने लोग सुन रहे हैं, पता नहीं चलता, क्योंकि बहुत सारे चैनल्स पर भी चलता है पाठ, बहुत सारे चैनल्स पर चलता है, उसी टाइम पे लाइव चलता है, यूट्यूब पे भी चलता है, फेसबुक पे भी चलता है। कितने लोग जुड़े हुए पता नहीं, हजारों लोग जुड़े होते हैं। समझो एक अंदाजा, 10,000 लोग अगर पाठ सुन रहे हैं इस वक्त, जैसे 10-20 हजार लोग कीर्तन सुनते हैं, ये तो यहाँ पर गिनती यूट्यूब पर दिखाई देती है। जहाँ पर प्रोजेक्टर्स लगे हुए हैं, हजारों लोग, सैकड़ों लोग बैठे हैं इकट्ठे होकर, वो लोग अलग। दास ये कहना चाहता है, एक समय पर जब एक साथ मिलकर संगत बैठती है, मानो 10,000 लोग बैठे हैं, एक अंदाजा लगा रहे दास, और एक पाठ हो गया श्री जपजी साहब जी का। महापुरुष वचन किया करते थे, बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे, हर महापुरुष का ये वचन है। सत्संगत का सबसे बड़ा लाभ ये है कि एक पाठ हो गया, 10,000 लोग एक साथ कर रहे हैं, तो एक एक की झोली में 10,000 पाठ का फल पड़ जाता है। यह है सत्संग की महिमा। हम यहाँ पर 13 बार मूल मंत्र पढ़ते हैं, 13 बार मूल मंत्र नहीं होता वो। अगर अंदाजा लगाएंगे ना आप, तो एक जन्म का नित्य नेम हो गया एक दिन में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दास बताता है इसलिए नहीं कि कहीं आलसी बन के ना बैठ जाए कि भाई मेरा एक जन्म का नित्य नेम तो हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमने गिनती में नहीं पढ़ना, क्योंकि अगर हिसाब में पड़ गया ना तो हमारे हर चीज का हिसाब होगा। इसलिए कभी भी अपने नेक गुणों का या नेक कर्मों का हिसाब कभी मत करना कि मैंने ये किया है। मन में भी मत कैलकुलेशन करना, क्योंकि जब ये कैलकुलेशन मन में चलती है ना, तो वहां पर भी एक कैलकुलेशन चलती है। ऐसे बोलिए धन गुरु नानक। कर्म कर तो होवे नहीं कर्म, इस पंक्ति का बड़ा गहरा अर्थ है। जो अपने नेक कर्मों का हिसाब नहीं रखता ना, गुरु उसके बुरे कर्मों का भी हिसाब नहीं रखता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये तो हमें पता है, हमारे बुरे कर्म नेक कर्मों से कहीं ज्यादा है। अगर बचना है उनसे तो अच्छा काम करके भूल जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और मन में यही विचार चलना चाहिए जो बाबा नंद सिंह जी के वचन, कि दिख रहा हो कि कृपा प्रत्यक्ष वर्त रही है, दिख रहा हो, महसूस हो रहा हो कि जो मुंह से कह रहा हूं पूरा हो रहा है, तब भी गुरु के आगे खड़े रह के यही कहना, पातशाह बख्श ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बख्श ले, बख्श ले, क्योंकि पता नहीं कितने पाप किए हैं, गिनती नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जप में सबसे विशेष पहलू है जुगती। जुगती से जपा हुआ नाम कई गुना आगे पहुंचा देता है। सबसे पहली जुगती अमृत वेला, दूसरी जुगती सत्संगत। सत्संगत में बैठकर जपो नाम,
बहुत ही जरूरी है। ये बाबा नंद सिंह जी के वचन लिखे हुए हैं कि अगर रोम रोम में सिमरन शुरू हो जाए, ये अवस्था हो जाए सिख की, रोम रोम में सिमरन, एक एक बाल से, ये सच है, ये कहने की बात नहीं है, रोम में आवाज आती है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। जिनके हृदय में प्रगट हो जाता है ना, उनके रोम रोम से आवाज आती है। इसकी कई घटनाएं हैं बाबा नंद सिंह जी के समय की, बाबा ईश्वर सिंह जी के समय की। महापुरुषों के रोम रोम ध्याता है, उसे आवाज आती है प्रॉपर कानों में। हर से बोलिए धन गुरु नानक। नहीं तो ये गुरबाणी फिर झूठी पड़ जाएगी अगर ऐसा ना हो तो। गुरुमुख रोम रोम हर ध्यावे। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। रोम रोम में भी अगर सिमरन शुरू हो जाए, सत्संगत फिर भी जरूरी है, क्योंकि सत्संगत नहीं करेगा अहंकार पड़ जाएगा अंदर। अकेले बैठ के जपने से, जो खाली अकेले बैठकर जपते हैं उन्हें लगता है कि उनके जैसा तो कोई है ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और यहाँ पर आकर बिछोड़ा पड़ जाता है, और बिछोड़ा पता नहीं कब जाके मिलेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम बिछड़े हुए ही हैं ना। बाबा नंद सिंह जी धारणा पढ़वाया करते थे, खोटिया कर्मा करके विछड़िया तेरे चरणा तो, कृपा करके मिलो बाबा जी। खोटिया कर्मा करके विछड़िया तेरे चरणा तो, कृपा करके मिलो बाबा जी। ओ खोटिया कर्मा करके विछड़िया तेरे चरणा तो, कृपा करके मिलो बाबा जी। कर्मा करके विछड़िया तेरे चरणा तो, कृपा करके मिलो बाबा जी। कृपा करके मिलो बाबा जी, कृपा करके मिलो बाबा जी। कृपा करके मिलो बाबा जी। कृपा करके मिलो बाबा जी, कृपा करके मिलो बाबा जी। खोटिया कर्मा, ओ खोटिया कर्मा करके बिछड़े तेरे चरणा तो, कृपा करके मिलो बाबा जी। कृपा करके जी 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 मिलो बाबा जी। लखा पापियां नू तारन वालिया, मेरी कदों वारी आएगी। मेरी कदों वारी आएगी। लखा पापियां नू तारन वालिया, मेरी कदों वारी आएगी। लखा पापियां नू तारन वालिया, मेरी कदों वारी आएगी। जिवें पिछलियां संगतां तारियां, ओवे किवें तारो बाबा जी।
जिमें पिछलियां संगतां तारियां होवे किवें तारो बाबा जी। जिमें पिछलियां संगतां तारियां होवे किवें तारो बाबा जी। तारो बाबा ये बेनती हो रही है ना कि हिसाब मत देख, गुनाह मत देख, बख्श ले, तार ले। इसका भाव क्या है कि गुरु प्रसाद वर्ता दे। हर से बोलिए धन गुरु नानक, हे गुरु नानक गुरु प्रसाद वर्ता दे। पर गुरु नानक पाशा आगे कहते हैं गुरु प्रसाद चाहिए तो जप। हर से बोलिए धन गुरु नानक। निरंकार ने गुरु नानक पातशाह को मूल मंत्र दिया गुरु प्रसाद तक। गुरु नानक पातशाह ने हमें दिया नानक होसी बीसस तक कि अगर गुरु प्रसाद चाहिए तो जप। किसे? आज सच जुगात सच है भी सच, नानक होसी भी सच। अगर बख्शाना है तो ये करना पड़ेगा। क्या? नाम जप लो, नाम जप लो, जन्म करो सफला के एक दिन तुरे जाना। नाम जप लो, जन्म करो सफला एक दिन तुरे जाना। नाम जप लो, जन्म करो सफला एक दिन तुरे जाना। लखां तर गए लखां ने तर जाना, जिन्हां ने तेरा नाम जपिया। लखां तर गए लखां ने तर जाना, जिन्हां ने तेरा नाम जपिया। लखां तर गए लखां ने तर जाना, जिन्हां ने तेरा नाम जपिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जप जप की कई जुक्तियां। पहली जुक्ति अमृत वेला, दूसरी जुक्ति अगर सत्संगत हो तो क्या कहने। हर से बोलिए धन गुरु नानक। फल हजारों से लाखों गुना हो गया, अब इसको करोड़ों पे पहुंचाना है तो क्या करें। हर से बोलिए धन गुरु नानक। इस संसार में सबसे पहले तो एक बात समझ लेना, जो दास कहने जा रहा है इसलिए कहने जा रहे हैं कि लोग कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है। इस संसार में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। वो कहते हैं ना, कई बार किसी को सुना था मैंने, वो कह रहा था इम्पॉसिबल में ही लिखा हुआ है कि आई एम पॉसिबल। हर से बोलिए धन गुरु नानक। वेद को पकड़ो, उस ज्ञान को पकड़ो। आई एम पॉसिबल है, हम पढ़ते हैं इम्पॉसिबल। हर चीज पॉसिबल है, हर चीज। क्योंकि दास ये बात इसलिए कह रहा है, जो आगे बताने जा रहा है कई लोगों को विश्वास नहीं होगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। पर दास यहाँ पर वो बात नहीं कहता जो किताबों में पढ़ी है, वो तो कहता ही है। पर कहने से पहले दास की कोशिश होती है कि वो किताब में पढ़ी हुई बात भी तब की जाए यहाँ पर जब मैंने उसका जीता जागता प्रूफ देख लिया हो। हर से बोलिए धन गुरु नानक। और गुरु नानक की मेहर से दास को ऐसे महापुरुषों के, ऐसे प्रेमियों के, गुरु के प्यारों की संगत मिली है कि जो कुछ देखा है, पहले तो मेरा मन नहीं मानता था जब तक देखा नहीं था। हर से बोलिए धन गुरु नानक। अब देख लिया तो कैसी शंका। वो दास बता रहे हैं, अगर विश्वास कर सको तो करना। जाप कर रहे हैं हम, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। एक होता है सांस गिरा, गुरु गुरु गुरु, ये कहने के लिए कहती है बाणी।
बहुत सारे महापुरुष ये करते हैं कि वह अंदर सांस लेते अंदर गुरु सांस छोड़ते वक्त, इसे कहते हैं सांस ग्रास सिमरन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नित जपिए सांस गिरास नाव पर्वत गारदा। कई लोग गिरास कहते हैं भोजन की गिराही को, नहीं, यहाँ पे ग्रास उसे नहीं कहा गया। ग्रास कहा गया है जब हम बाहर छोड़ते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सांस को अगर भोजन की गिराही के साथ अगर ग्रास कहा गया होता तो दिन में 2-3 बार ही जप पाते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सांस गिरास नित जपिए सांस गिरास नाव पर्वत गारदा। तो रोज जपो, पर कैसे? सांस गिरास। महापुरुष कहते थे इसमें बड़ी जुक्तियां हैं। एक होता है नाम जपना। अब यहाँ पे जुक्ति ये है, कोई श्वास रोक कर अपने श्वासों पर काबू करके नाम जपे, उसका फल मैं गिनती नहीं बताता, यहाँ पे बहुत गुना बढ़ जाता है, बहुत गुना। गिनती कहूंगा तो कैलकुलेशन आ जाती, चालू हो जाती लोगों की। बहुत बढ़ जाता है अगर आप श्वास रोक कर जपते हो, बंदगी करते हो। आपको पता है ऋषि मुनि जितने भी हैं वो अपने श्वासों को चढ़ा लेते हैं ऊपर और फिर जपते हैं। ये जुगती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसे नहीं करते सब, जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग कर बैठे हैं, उसे पाने के लिए अपने गुरु से ज्ञान लेकर बैठते हैं और फिर जपते हैं। वो टाइम पास के लिए नहीं बैठे, वो किसी को दिखाने के लिए नहीं बैठे, अकेले बैठे हैं गुफा में और फिर श्वास चढ़ाकर जप रहे हैं। कोई कारण है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो अलग बात है, वो श्वास चढ़ाना एक और बात होती है। वो दास जो बात कर रहा है वो तो उससे भी आगे का पहलू है। सांस रोककर, मानो सुखमनी साहब जी का अष्टपदी है, ठीक है, अब आप पढ़ रहे हो उसे। मूल मंत्र जपते वक्त भी आप 4 श्वास ले सकते हो, 8 ले सकते हो, पर अगर एक श्वास में मूल मंत्र पढ़ा जाए तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। और अगर एक सांस लेते वक्त मूल मंत्र, एक सांस छोड़ते वक्त मूल मंत्र, दास कह रहा है इसलिए पहले कहा आई एम पॉसिबल। दास ने ऐसे लोगों की संगत की है, एक सांस में 10 बार मूल मंत्र कर लेते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किंतु परंतु मत करना, उसमें मत पड़ जाना, सच कह रहे हैं दास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब सुखमणी साहब जी की अष्टपदी है, अभ्यास से सब कुछ पॉसिबल है, अभ्यास से। सुखमणी साहब जी की अष्टपदी है, उसमें एक पौड़ी है, ठीक है, 8 आते हैं, उसके बाद फिर एक अष्टपदी आती है। मानो एक अंग पढ़ने को 1 श्वास लगता है, खर्च होता है, तो एक अष्टपदी में कितने हो गए? 8 श्वास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और कोई अभ्यास करे तो 4 श्वास सांस रोक के करे। और दास ने ऐसे अभ्यासियों की संगत मिली है बादशाह की कृपा से, जो 1 श्वास में एक अष्टपदी करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 24 श्वासों में श्री सुखमनी साहब जी का पाठ। सुनने में ऐसा लगता है क्या बात कर रहे हैं भाई साहब। जिन्होंने पाना है वो ये रास्ता ले ले, जुगती को अपनाने की कोशिश करिए। एक दिन में नहीं होता, ये सालों की मेहनत होती है। जिन्होंने पाना है वो मेहनत करती है। जिन्हीं नाम ते आए गए मशक्कत काल में, मशक्कत कहती है मेहनत को। जिन्होंने पाना है वो मेहनत करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेहनत पर ही तो वो तर्स करता है, उसकी मर्जी, मिलना ना मिलना उसकी मर्जी। एक्चुअली हमारा काम मेहनत करना। हम गुलाम हैं उसके, हमें सवाल पूछने का हक नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, वो मालिक है हमारा। जब चाहे मिल ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सबे आशा पूरियां गुर महल बुलाइया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस दिन उसने बुला लिया सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। भाव कोई इच्छा बचेगी नहीं, खत्म ही हो जाएंगी इच्छाएं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब आओ 2 पंक्तियां पढ़ लेते हैं। गुण गावे मन हरिया, गुण गावे
गुण गावत मन हरिया होवे। कथा सुनत कथा सुनत माल सगली को गुण गावत मन हरिया बोलिए धन गुरु नानक। एक श्वास में एक अष्टपदी, एक श्वास में, श्वासों को रोककर इसका लाभ बेअंत बेअंत। बहुत जल्दी सुरत जुड़ जाती है। सबसे पहले एक बात महत्वपूर्ण नोट करो, दास ने पहले भी शायद बताई थी। जब हम सांस रोक लेते हैं, एक तो सुस्ती नहीं आती, एक तो मन शब्द से जुड़ जाता है। आप करके देखना अभ्यास। सांस रोककर जब हम नाम जपते हैं, मन शब्द में जुड़ जाता है। क्यों? मौत दिखाई देती है। जब किसी को मारना हो तो गला दबा देते हैं, उसका सांस रोक देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मौत दिखाई देती तो कौन याद आता है? गुरु नानक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुरत शब्द से जुड़ जाती है। अभ्यास करके देखो। ये बातें करने से नहीं होगा। अगर चालिया सुना है, कथा सुनी है मूल मंत्र की, और अगर मन नहीं किया ना कि 40 माला मूल मंत्र का नेम बनाने, मेरे पास आगे से कुछ लोग, दसम द्वार नहीं खुलता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक्चुअली तो मेरा भी नहीं खुला हुआ। मैं एक बात बता रहा हूँ, जस्ट मुझे कोई नॉलेज नहीं है उसकी, पर मैंने जब उसे पूछा कि भाई कितना नेम करते हो, नेम ऐसा बताया जो बच्चे करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और चाहिए क्या? दसम द्वार खुल जाए। सवाल लेके आए हैं MBA का और बैठे हैं नर्सरी में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पढ़ाई चालू है नर्सरी की। अगर कुछ आगे बढ़ने की इच्छा है तो सबसे पहले नेम बढ़ाइए। नेम ही अभ्यास है। और फिर ये इन जुगतियों को अपनाने की कोशिश कीजिए। बातें करने से नहीं होगा। पूछे तो पता कहे मार्ग ना तरे पग। हम वो लोग हैं जो रास्ता पूछते हैं पर आगे बढ़ते नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। प्रीतम के देश कैसे? बातन से जाइए। मिलना गुरु नानक से है। पूछते हैं रास्ता क्या है, बताते हैं भाई ये रास्ता है, ठीक है चलेंगे कभी ना कभी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज ट्रैफिक बहुत है, कल जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुण गावत मन हरिया होवे। मन हरिया होवे। कथा सुनत कथा सुनत माल सगली खोवे। हरिया होवे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब की जुक्तियां चल रही हैं, गुरु पातशाह सेवा ले रहे हैं। एक आदमी नीचे खड़ा है जमीन पर, एक आदमी बिल्डिंग के टेरिस पर खड़ा है। दूसरे से डिस्कशन कर रहे हैं। एक कहता है टेरिस पर कुछ सामान पड़ा है, दूसरा कहता है नहीं पड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ध्यान से समझना, दास एक दुनियावी पहलू लेकर समझाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मुझे पता है
कि ये कीर्तन सुन के बहुत सारों के मन में शंकाएं पैदा होंगी, ऐसे कैसे हो सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये उदाहरण बाबा नंद सिंह जी दिया करते थे, मैं थोड़ा सा बदल के दे रहा हूँ। एक आदमी नीचे खड़ा है, एक आदमी बिल्डिंग के टेरिस पर खड़ा है। नीचे खड़ा कह रहा है कि बिल्डिंग पर सामान पड़ा है, मानो 2 गुनी घास पड़ी है, और दूसरा कह रहा है नहीं पड़ी है। सही कौन है, गलत कौन है? दोनों सही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो कह रहा है 2 गुनी घास पड़ी है, वो वहां पर देख के आया है, ऊपर टेरिस पर उसने देखा है। जो कह रहे नहीं पड़ी है, उसने नहीं देखा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर उसके पास एक ऑप्शन है ना कि बिल्डिंग के ऊपर चढ़े, जाकर देख ले पड़ी है कि नहीं पड़ी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यही बात यहाँ पर है। जिन्हें लगता है ये नहीं हो सकता, वो करके देख ली। इतने सारे एक्सपेरिमेंट जीवन हमसे करती है, जिंदगी हमसे करती है, हम जिंदगी से करते हैं। इतना दुख सहते, इतना कुछ करते, इतनी बड़ी बड़ी पढ़ाई कर लेते, बड़े बड़े काम कर लेते, क्या नहीं कर लेते हम जिंदगी में। दुखी होते हैं, सुखी दिखाते हैं अपने आप को, दिखावा भी कर लेते हैं, हर चीज पाखंड सब करते हैं। एक ये भी कर लो। एक बार दास के कहने पर 40 माला मूल मंत्र का नेम अमृत वेले करके देखो। एक दिन में नहीं हो जाता, पहले अभ्यास कर करके 40 माला तक आओ, उसके बाद रात को 12:30 बजे स्नान करके बैठ जाओ और 40 दिन करके देखो, फिर कहो ये पॉसिबल है या नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब आगे की जुगती की अवस्थाएं। जप 3 प्रकार का होता है। अवस्थाएं कई प्रकार की होती हैं, पर जप 3 प्रकार का होता है। पहला होता है वाचक। वाचक जप क्या है? क्योंकि अभी तक जो दास ने पहलू बताए हैं, कई गुना फल बढ़ जाता है। अभी उसमें अगर ये और चीज ऐड कर देंगे, फल और गुना बढ़ जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या है? पहला है वाचक जप। वाचक जप क्या होता है? वाहिगुरु वाहिगुरु बोल रहा हूं मैं, मुझे सुनाई दे रहा है, जो सामने बैठा है उसे भी सुनाई दे रहा है। जोर जोर से वाहिगुरु वाहिगुरु कहना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जोर जोर से राम राम कहना, जोर जोर से कृष्ण कृष्ण, जो जिसका नाम है जपे। इसे कहते हैं वाचक जप। इसका फल है, पर एक लिमिट है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसका फल संगत में बैठ के करेंगे, अमृत वेले करेंगे तो जितना जो फल है वो तो है ही, पर उसकी भी एक लिमिट है ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दूसरी जुगती है उपांश। उपांश कहते हैं मुंह के अंदर। ध्यान से समझना, मुंह के अंदर कैसे होता है कि मुख बंद है, अंदर जबान हिल रही है, पर आवाज नहीं कर रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसका फन 100 गुना बढ़ जाता है। एक जोर से बोलकर करना, वाहिगुरु वाहिगुरु, एक। अब वो मुंह बंद हो गया, रचना अंदर हिल रही है और सुरती वहां जुड़ी हुई है। चल रहा है सिमरन, पर आवाज नहीं आ रही। इसका फल 100 गुना बढ़ जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर यहाँ पर एक बात का ध्यान देना है, बड़ा जरूरी। चाहे मन में करें चाहे बोल कर, कान सुनने चाहिए। गाविए सुनिए, मन रखिए भाव। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रसना कहे या मन में कहे, पर कान जरूर सुनने चाहिए। कान सुनेंगे तो पूरा फल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वरना फल तो तब भी है, कान ना सुने पर अधूरा है वो। पूरा फल चाहिए, कान सुनने चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसके आगे है मानस। मानस जाप। इसको समझने के लिए थोड़ा डिटेल में जाना होगा। यहाँ पर जबान भी रुक जाती है, ध्यान से समझना। एक होता है कि हम बोल रहे हैं, अब मैंने मुंह बंद कर लिया पर मेरी जबान अंदर हिल रही है। हल्के से किसी किसी के होंठ भी हिलते हैं, पर अगर होंठ बंद हो भी जाए तो अंदर जबान हिलती रहती है। अब यहाँ पर जबान भी रुक जाती है, ना लब हिल रहे हैं, ना रसना हिल रही है, ना आवाज आ रही है। अब केवल चल रही है मन में, सुरती में चल रहा है जाप। इसे कहते हैं मानस जाप। इसका फल 1000 गुना ज्यादा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि इसमें एकाग्रता पूरी चाहिए। बोलते वक्त एकाग्रता नहीं चाहिए, मन में जपते हुए भी एकाग्रता पूरी नहीं चाहिए, पर जब सुरती से जाप करना है, एकाग्रता पूरे पिन पॉइंट चाहिए होती है।
हर से बोलिए धन गुरु नानक। और इसे करने के लिए पहले अभ्यास में एकांतवास की जरूरत होती है, अकेलापन। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये संगत में बैठकर नहीं होता, ये अकेले में ही हो सकता है। और जब अभ्यास हो जाए फिर चाहे संगत में बैठे हो चाहे कहीं बैठे हो, वो चलता रहता है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर एक बात दास बड़ी ध्यान से समझाना चाहता है, क्योंकि ये बहुत जरूरी बात है। जो अभ्यास करना चाहते हैं वो ध्यान से सुने। ये जो दास ने कहा कि अगर मुख से बोले तो कम फल है, रसना हिले अंदर तो ज्यादा फल है, और अगर रसना भी ना हिले, जबान भी ना हिले तो बहुत ज्यादा फल है। पर ये अगर कोई जबरदस्ती करे अपने साथ कि आज मैं न जबान हिलाऊंगा न जोर से बोलूंगा, सुरती में जाप करूंगा, तो दिमाग पे असर हो जाता है, पागल तक हो जाते हैं लोग। हर से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ी ध्यान से समझना, घबराना नहीं। दास ये कह रहे हैं कि ये अवस्थाएं करने से आती हैं, पहले जोर जोर से बोलना पड़ता है। ये सहज अवस्था है। अगर कोई करना चाहेगा जबरदस्ती, यहाँ पे दर्द, दर्द शुरू हो जाएगा, और अगर वो जबरदस्ती फिर भी करता रहा तो असर हो जाता है दिमाग पर। ऐसे बहुत लोगों को देखा है दास ने। महापुरुष समझाते थे कि इसमें जबरदस्ती नहीं, सहज होता है। सहज कैसे? जब इंसान अभी बैठ गया रात को 12 बजे, वाहेगुरु 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 2, 2.5, 3, 4 घंटे कर रहा है। अब उसकी जबान थक गई, गला थक गया। अब अपने आप मुख बंद हो जाएगा, भीतर शुरू हो जाएगा। अंदर जबान हिलती रहेगी, एक समय आएगा जबान थक जाएगी। जब थक कर अपने आप होता है उसे कहते हैं सहज। हर से बोलिए धन गुरु नानक। अभी अभ्यासियों को क्या हो जाता है, जो इतने सालों से अभ्यास कर रहे हैं, उनका अभ्यास कर करके यहाँ तक पहुंच चुके होते हैं कि अब सीधा सुरती में जाप चलता है, बोलना नहीं पड़ता। पर पहले शुरुआत में उन्होंने जोर जोर से अभ्यास किया होता है, जोर जोर से। उसके बाद थक कर ये जबान विश्राम में आ जाती है, जबान थक जाती है, फिर मन में चलता है, फिर सुरती में चलता है। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। असल में मन के बाद नाभि में जाता है, नाभि से सुरती पे जाता है। ये अलग अवस्था है, ये प्रकरण ही अलग है एक्चुअली में। धन गुरु नानक। बात चल रही है जाप की, इसमें जबरदस्ती नहीं करनी, सहज में रहना है, सहज में। मन सहज में आ जाए, करते करते, मेहनत करते करते होता है। एक दिन की बात नहीं है। गाया था ना हमने, इबादत करने दे नाल गल बंदी है, किसी दी अज बंदी है, किसी दी कल बंदी है। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और ये करते करते अवस्थाएं मिलनी ही मिलनी है। ये गुरु नानक पातशाह का ना ऑटोमेटिक सिस्टम है। आप अभ्यास शुरू कर दो। अगर आपको लगता है ना कि अभी मुझे आगे क्या करना है पता नहीं, आपको सपने में आके गुरु बता के जाएंगे, या किसी संत महापुरुष को भेज देंगे समझाने के लिए। वो उसका काम है, ऑटोमेटिक सिस्टम है। जहां जहां जरूरत होती है वहां वो भेज देता है किसी न किसी को। आपका काम है, बाबा ईश्वर सिंह जी की बात कहा करते थे हमेशा, यार होणगे मिलणगे आपे चित्त नु टिकाने रखिए। कई कहते थे ना फलाने महापुरुष आए, फलाने महापुरुष आए, आओ। बाबा ईश्वर सिंह जी से जब छोटे अवस्था बचपन था तो उन्हें लोग कहते थे कि फलाना चलते वहां चलते। वो कहते थे नहीं, यार होणगे मिलणगे आपे चित्त नु टिकाने रखिए, कि अगर कोई यार होगा आके मिल जाएगा। मैं सिर्फ अपने मन को टिकाने पे रखूं, कि भाव मन को गलत जगह पे न जाने दूं, सही जगह पे सही संगत में रखूं मन को, यार अपने आप लेने आएगा। और बाबा नंद सिंह जी आए लेने। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जपना हमारा काम है, जपना कर्म है, गुरु प्रसाद फल है। फल हमारे हाथ में नहीं। कृष्ण जी कहते हैं ना, तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। हर से बोलिए धन गुरु नानक। हमारा काम है जपना। कुत्ते का काम होता है भौंकना, मालिक सुने ना सुने। हर से बोलिए धन गुरु नानक। हमारा काम है जपना, और ये तो सुनता है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। कबहू के सुने पुकार, कबीर जी कहते हैं ना, केसो केसो कूकिए ना सोइए आसार, रात दिनस के कुक ने कबहू के सुने पुकार। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्यों जपें? जपेंगे मन की मैल उतरेगी। गुण गावन गावत मन हरिया होवे। ये सूखा हुआ मन फिर से हरा हो जाएगा अगर जपेंगे। कथा सुनत मन सगली खोवे। कथा सुनेंगे, प्रवचन सुनेंगे, गुरु की बातें सुनेंगे, मन की मैल उतर जाएगी। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।
गुण गावत मन हरिया होवे, गुण गावत मन हरिया होवे, कथा सुनत कथा सुनत बाल सगले को गुण गाव मन हरिया होवे, दास को ना शौक है महापुरुषों के जीवन पढ़ने का, अलग अलग महापुरुषों का। और सबसे पहले मेरे ध्यान उस बात पे होता है कि किसी ने प्राप्ति कैसे की, ये जानने की इच्छा होती है, मन में बड़ी तीव्र इच्छा होती है कि बाबा नंद सिंह जी ने कैसे पाया, संत अतुल सिंह जी ने क्या करके पाया, उनका नेम क्या था, वो कैसे करते थे। सबसे पहले मैं वो अंग ढूंढता हूँ, हर से बोलिए धन गुरु नानक। और सबके जीवन से एक चीज जो प्राप्त हुई ना दास, वो बताना चाहता है सारी संगत को, सबके जीवन में से कि ज्यादातर करके जो महापुरुषों ने साधना की, पहले जोर जोर से जपा और बड़ा ही आहिस्ते जपा, बड़ा ही सहज में। जैसे वाहिगुरु का अभ्यास ऐसे किया, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। ये भी दास फास्ट करके बता रहे हैं, असल में जो मेरे पास एक दो की रिकॉर्डिंग भी है, वैसे करके बताते हैं दास। वाहे गुरु सारे हे गुरु प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस प्रकार से सहज में पूरी रात पूरा दिन 22-22 घंटे का अभ्यास महापुरुषों का। इससे होता क्या है, एक ना सृष्टि का नियम है, ये सृष्टि का नियम है क्या, अगर आपको किसी चीज में महारत हासिल करनी है, किसी भी पॉइंट पर तेजी हासिल करनी है, एक कीर्तन को ही ले लीजिए, हमें सिखाया जाता है गाते वक्त कि अगर आपको आवाज ज्यादा ऊंची लेकर जानी है, आप चाहते हो कि आवाज ज्यादा से ज्यादा ऊंची जाए, तो अभ्यास खरज में करो। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जितना नीचे तक आपका अभ्यास होगा, नीचे के सुरों में, आवाज उतनी ऊंची खुलती है। उल्टा है ना नियम। कई लोग कहते हैं कि 40 माला कैसे करें रात में, हमारे को इतना टाइम लग जाता है। वो इसलिए क्योंकि हमारा अभ्यास नहीं है। अगर हम सहज में अभ्यास करेंगे इतना स्लो, क्योंकि महापुरुषों के जीवन से एक तत्व निकला है, अभ्यास इतना स्लो किया है उन्होंने, पर आहिस्ते आहिस्ते वो अभ्यास ऐसा हो गया है कि वाहिगुरु सिमरन बाबा मां हरनाम सिंह जी ने सुरती से 1.25 करोड़ श्री जपजी साहिब जी के पाठ किए थे एक साल में। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक।
अब ये बात सुन के सब कहेंगे क्या कह रहे हैं, कैलकुलेशन करेंगे तो हो ही नहीं सकते। पर यहाँ पे बात हो रही है सुरती की। सुरती में स्पीड, जितना स्लो अभ्यास किया जाए स्पीड हजारों गुना बढ़ जाती है, 10, 20, 100 गुना नहीं। और उसमें कई कहेंगे भी इतना तेज करने की जरूरत क्या है। बात यहाँ पर मन जुड़ने की होती है, चाहे कोई स्लो करे चाहे तेज। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस बात कैसे समझाए, कुछ बातें ऐसी है ना दास समझाएगा तो भी शायद समझ में ना आएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये वही बात है, बिल्डिंग पर चढ़ के देखो ऊपर घास की गोनी पड़ी है कि नहीं, करके देखो। ये मेरी हाथ जोड़कर बेनती है, क्योंकि मुझे ना बड़ी उम्मीद है अमृतुल्ला ट्रस्ट की संगत से, इतनी संगत जुड़ी हुई है। पर खाली कीर्तन सुनकर सो मत जाना, उस पर चलने की कुछ तो कोशिश करना। 40 माला नहीं कर सकते, 26 माला कर लो। शुरुआत तो करो 13 माला से, कम से कम 13 माला मूल मंत्र का नेम बनाओ। 5-25 पाठ श्री जपजी साहब जी का नेम हो, सब करो जितना हो सके। सोशल मीडिया को डिलीट मार दो। हाँ, अगर आपके सोशल मीडिया में आप कीर्तन सुनते हो, उसका लाभ उठाते हो, अमृत लेते हो उससे, तो यूज करो। अगर जहर पीते हो तो छोड़ दो और इसे संभालो। समय सबके पास होता है। जो लोग कहते हैं ना टाइम नहीं है, अपने मतलब के काम के लिए हमारे पास बहुत टाइम है, और जो काम में इंटरेस्ट नहीं उसमें कोई टाइम नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जितना स्लो अभ्यास करेंगे उतनी ज्यादा स्पीड होती है आगे चल के, और वो स्पीड ऐसी होती है अक्षर मरते नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और रस भी आता है, आनंद भी आता है। दास ने पहले भी कहा था, किसी को बाइक फास्ट चलाने में मजा आता है, किसी को बड़ा स्लो चलाने में मजा आता है। बात तो मजा आने की है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और सबसे खास बात जो इसमें देखने वाली है, भले तेज चलाओ, एक्सीडेंट ना हो, अक्षर ना छूटे, प्रॉपर चले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुण गावत मन हरिया गावत मन हरिया असल में ये जप का जो पहलू है बहुत विशाल है। केवल जप के ऊपर ही पूरा चालिया किया जा सकता है कि जप के इतने पहलू हैं। और यहाँ पर 4 अवस्थाएं हैं, बैखरी, मध्यमा, पसंती और नाभि परा जिसे कहते हैं। ये 4 अवस्थाएं ऐसी हैं कि सुरत को लिव जोड़ देती है नाम से, पर इसका अभी समय नहीं है, बहुत समय हो गया, भोग भी डालना है। तो गुरु नानक मेहर करेगा। दास ने पहले भी कहा है कि बहुत लोग कहते हैं कि आपने कहा था श्री जपजी साहब जी का अर्थ पूरा लेंगे। तो अभी जो दास जब भी कीर्तन करेगा, जहां भी करेगा, लाइव तो होता ही है चैनल पे, सबने सब्सक्राइब करके रखा है, तो इसी जपजी साहब जी के वाणी को ही आधार बनाकर आगे बढ़ेगा अब दास, ताकि ये पूरे अर्थ दास गुरु साहब जी सेवा ले सके। क्योंकि मूल मंत्र हो गया, अब आगे क्या है, सोचा सोचना हो भी जो सोची लखवार। अब ये एक पंक्ति पर पूरा प्रकरण बनता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सोचा सोचना हो भी जे सोची लखवार, चुप है चुप न हो भी जलाए रहा लिवतार। इस पर पूरा दूसरा प्रकरण बनता है। इस प्रकार से दास हर वक्त हर समय जब भी कीर्तन करेगा, अब इसी प्रकरण को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। गुरु नानक मेहर करे ताकि सबको, हम सबको ये ज्ञान मिल सके। दास सच कहता है, सत्संग जी गुरु साहब जी की हजूरी में दास ये कहता है ये बात कि जो कथा दास कर रहा है, गुरु साहब जी ने सेवा सर पे हाथ रख के ली है। मैं नहीं करता, गुरु करवाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मेरी किसी बात का बुरा लगा हो, किसी को, किसी के मन को ठेस पहुंची हो मेरे बोलने की वजह से, तो वो मेरी गलती है। दास हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगता है। पर जो बात अच्छी लगी हो, जो गुरु नानक ने बुलवाई हो, जिसे सुनकर जुड़ने का मन किया हो, नित्य बढ़ाने का मन किया हो, तो वडियाई गुरु नानक की। कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाव न जाने मेरा। और ये सच कह रहा है दास, वडियाई उसकी, उसने बुलवाया, उसने गवाया। अमृत वेला संभालो,
अमृत वेला संभालो, अमृत वेला संभालो दास की बेनती। घर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच।
पातशाही दसवीं कवियो बाच बेनती चौपई हमरी करो हाथ दे रक्षा। पूरन होए चित्त की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतिपारा। हमरे दुष्ट सब है तुम कावो आप हाथ दे मोए बचावो सुखी बसे मोरो परवारा। सेवक सिख सब करतारा मोर अच्छा निज कर दे करिए सब बैरन को आज संगरिए। पूरन होए हमारी आशा और भजन की रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई और ना त्याऊं। जो पर जाओ सो तुम ते पाओ सेवक सिख हमारे तारिए चुन सतर हमारे मारिए। आप हाथ दे मुझे उभरिए मरण काल का त्रास नुवरिए। हो जो सदा हमारे पछा श्रेयस तुझ जो करियो रक्षा। राख लियो मोय राखण हारे साहिब संत साहिब प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता। हो पुरी चतर दस कंता काल पाए ब्रह्मा बप तरा काल पाए शिव जो अवतारा। काल पाए कर विष्णु प्रगासा सगल काल का किया तमाशा। जवन काल जो की शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जो थियो जवन काल सब लोक सवारा। नमस्कार है ताए हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जक्षण उपजायो। आद अंत के अवतारा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार तिसही को हमारी। सगल प्रजा जिने आप सवारे सेवकन को शिव गुण सुख दियो सकरन को पल मोहब्बत कियो। कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चेटी ते कुंजर अस्तोला। सब पर कृपा दृष्ट कर भोला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछान कट कट के पट पट की जान जब उद करख करा कर तारा प्रजा तर्क तब दे अपारा। जब वह करख करत हूँ कब मैं मिलत दे तर सब जेते बदन श्रेष्ठ सब धार आप आपने मोजे उतार। तुम सब ही ते रहत निरालम भेद भेद अरे आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद संभव। तांका मूढ़ उचारत भेदा को पेव न पापद भेदा तांको कर पान अनुमान महामूढ़ कछ भेद न जान। महान देव को कहत सदा शिव निरंकार का चीनत न पेव। आप अपनी बुध है जेती तो पेन पेन तो तेती तुमरा लखा न जाय पसारा। कुछ सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंग पयोराव कई कोपा। अंडज जेरज से तज कीने कुछ खान बहो रच देने कहूँ फूल राजा हव बैठा समट प्यो संतरे बैठा। सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप से अम्बव। अब रक्षा मेरी तुम करो बार असिक संगरो दुष्ट जिते उठवते उत्पाता। सगल मलेश करो रण काता जे अस तुझ तव सरणी पर के दुष्ट दुखत हव मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार ते है आके काल निकट ने है रक्षा होई ताए सब काला। दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला कृपा दृष्ट संजाय निहरो आके ताप तनक मोहर। और तो सिद्ध कर्म सब होई दुष्ट छा सके न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा काल पास ते ताए उमारा। जिन नर नाम तिहारो कहा दुष्ट लोक ते रहा खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी। आप हाथ दे ले उबारी सर्व डोर मोह सहाय दुष्ट लोक ते ले बचाई। खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी आप हाथ दे ले उबारी सर्व डोर मोह सहाय दुष्ट दुख ते ले राम कली महला तीजा आनंद क्यों कार सतगुर प्रसाद।
ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰੋ ਹਰ ਨਾਲ ਰੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ ਸਮਾਨ ਕਰਾਂ ਸਮਰਸ ਸੁਆਮੀ ਸੋਗ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰੋ ਨਾਲੇ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੋ ਪਾਵੇ ਸਦਾ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੇ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਵੇਰੇ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰੇ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਸਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ ਕਰਸਾਨ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਗੁਰ ਮਿਟੋ ਜਿਸਿਏ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਨੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਕਰੋ ਪਿਆਰੋ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਘਰ ਸੁਭਾਗੇ ਸਬਦ ਵਾਜੇ ਕੱਲਾ ਜਿ ਕਰ ਧਾਰੀਆਂ ਪੰਜ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੂੰ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਰੰਗੇ ਲਾਗੇ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਦਸ ਕੋ ਆਦਿਕ ਕਰਿਆ ਨਰਵਾਜੇ ਅਨੰਦ ਸੁਨੋ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਸੂਰੇ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਗਰ ਪਏ ਸਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਪਤੇ ਜਾਨੀ ਸੁਨਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿ ਸਤਿਗੁਰ ਰਿਆ ਭਰਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਦ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਧੂਰੇ ਸਲੋ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਮਾਤਾ ਤਤ ਮਾਤ ਜਿਸ ਰਾਗ ਗਾਈ ਗਾਇਆ ਖੇਲਿਆ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਂ ਆਈਆਂ ਵਾਜੇ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਿਨਿ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਜਿਨਿ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਜਿਨਿ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਜਿਨਿ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਿਨਿ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ 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 ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਛੋਟੇ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
शुक्राना शुक्राना गुरु जी तेरा 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 शुक्राना। सांसों की ये माला गुरु जी तेरे दम से है, आँखों में उजाला गुरु जी तेरे दम से है, मनोभुवन हरियाला गुरु जी तेरे दम से है, जीवन ज्योत में ज्वाला गुरु जी तेरे दम से है। शुक्राना करूं मैं तेरा शुक्राना दम दम करूं मैं तेरा शुक्राना शुक्राना गुरु जी तेरा शुक्राना शुक्राना गुरु जी तेरा शुक्राना। भर भर हाथ लुटाता है जो तू वो दानी है, तूने हमारे सर पे सुखों की चादर तानी है, घर में तेरे भक्तों के जो दाना पानी है, ये सब तेरी देन है तेरी मेहरबानी है। शुक्राना गुरु जी तेरा शुक्राना हर पल करूं मैं तेरा शुक्राना शुक्राना गुरु जी तेरा शुक्राना शुक्राना गुरु जी तेरा शुक्राना। कड़वे को भी मीठा कर दे तेरे मीठे बोल, कह दे जिसको तू अपना वो हो जाए अनमोल। धन वाले या निर्धन जो भी आए तेरे कोल, सबको एक बराबर तोले तेरी साची तोल। शुक्राना गुरु जी तेरा शुक्राना हर क्षण करूं मैं तेरा शुक्राना शुक्राना गुरु जी तेरा शुक्राना शुक्राना गुरु जी तेरा शुक्राना। संगत में हम सबको बिठाया गुरु जी शुक्रिया, डूबे हुओं को पार लगाया गुरु जी शुक्रिया, लंगर दान दया का लुटाया गुरु जी शुक्रिया, मंगतों को खुशहाल बनाया गुरु जी शुक्रिया। शुक्राना गुरु जी तेरा शुक्राना हर घड़ी करूं मैं तेरा शुक्राना शुक्राना गुरु जी तेरा शुक्राना शुक्राना गुरु जी तेरा शुक्राना।
जब से तेरे चरणों में ये शीश झुकाया है, जो भी चाहा तेरी कृपा से वो ही पाया है। ध्यान लगा के सोचा तो ये समझ में आया है, तेरे दम से ही ये सारी माया छाया है। शुक्राना गुरु जी तेरा, शुक्राना हर पहर करूं मैं तेरा शुक्राना। शुक्राना गुरु जी तेरा, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी तेरा शुक्राना। तेरी कृपा से हाथों में ये मेहंदी रच दी है, तेरी कृपा से खुशियों की ये नौबत बजती है। तेरी कृपा से ही बेटी ये दुल्हन बनती है, तेरी कृपा से गुरुजी दुल्हन डोली चढ़ती है। शुक्राना गुरुजी तेरा, शुक्राना शत शत करूं मैं तेरा शुक्राना। शुक्राना गुरुजी तेरा, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी तेरा शुक्राना। दिल का रिश्ता आज बना है गुरुजी शुक्रिया, मेल नसीबों का ये हुआ है गुरुजी शुक्रिया। खुशियों का ये बाग खिला है गुरुजी शुक्रिया, बेटे के सर सहरा सजा है गुरुजी शुक्रिया। शुक्राना करूं मैं तेरा, शुक्राना दिल से करूं मैं तेरा शुक्राना। शुक्राना गुरुजी तेरा, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी तेरा शुक्राना। धूप में कर दी छाया तूने गुरुजी शुक्रिया, सर पे दिया ये साया तूने गुरुजी शुक्रिया। गृह प्रवेश कराया तूने गुरुजी शुक्रिया, घर ये स्वर्ग बनाया तूने गुरुजी शुक्रिया। शुक्राना करूं मैं तेरा, शुक्राना दिल से करूं मैं तेरा शुक्राना। शुक्राना गुरुजी तेरा, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी तेरा शुक्राना। तेरी कृपा से गुरुजी सबने साज बजाए हैं, तेरी कृपा से ही गुरुजी ये बोल लिखाए हैं। तेरी कृपा ने लब पे मेरे सुर ये सजाए हैं, तेरी कृपा से गुरुजी हमने गीत ये गाए हैं। शुक्राना करूं मैं तेरा, शुक्राना गाकर करूं मैं तेरा शुक्राना। शुक्राना गुरुजी तेरा, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी तेरा
जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः
गुरु जी सदा जय गुरु जी की।